Welcome students. Today we will study about the venation in case of the leaf. What is venation? Venation is the arrangement of the veins and the veinlets in the leaf is known as the venation. लीव्स में वेन्स और वेन से जो ब्रांचेस निकलती हैं विच आर कॉल्ड एज द वेनलेट्स, देयर अरेंजमेंट इज नेम्ड एज द venation. Actually veins and the veinlets are present within the leaf, as you can see in this diagram. This is the main vein which is called as the midrib, and from this veins the branches arise which are called as the veins, and further these veins again divide and redivide to form the even smaller veins which are called as the veinlets. In this way they form a network in the lamina of the leaf. So these veins carry the water and the dissolved minerals to the different parts of the leaf, and they also carry the prepared food from the leaf to the other parts of the plants. Actually these contains the conducting strands, xylem and the phloem, which are involved in the conduction of the water and the food. So that the veins provide the plants with the food supply and carry the food from the one place to the other place, and they also carry the water and dissolved minerals from the one part of the leaf to the other part of the plant. Moreover they also give the some rigidity to the lamina. लैमिना को जो है ये थोड़ी सी सपोर्ट देती हैं, उसको हार्डनेस देती हैं, रिजिडिटी देती हैं, जिसकी वजह से लैमिना जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है वो रहता है, ताकि जो है वो लैमिना मैक्सिमम लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर सके फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नाउ वी विल सी दैट इन द लैमिना ऑफ द लीफ there may be present one or more principal veins which is called as the midrib. यानी हर लीफ में मेन वेन या प्रिंसिपल वेन जो है this will be called as the midrib. And the lamina of the leaf there may be one or the more principal veins or the midribs, and these principal veins and the midribs will give rise to the further smaller branches which will be called as the veins, and from the veins the further branches will arise which are called as the veinlets according to their size. यानी मिडरब जो है वो सबसे ज़्यादा मोटी है, मेन वेन है, उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं दीज विल बी कॉल्ड एज द वेन्स फर्दर ब्रांच एंड री ब्रांच and also rejoin, and the more finer branches will be called as the veinlets. Usually these veinlets end blindly in the leaf. The character of the venation depends upon the number of the main vein or the midribs as well as the arrangement of the veinlets. यानी जो है हमारे पास जो है वो विनेशन जो है वो किस टाइप की है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है. एक तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ द मेन वेन और द मिडरब्स, यानी उसमें मिडरब कितनी है, एक है या एक से ज़्यादा है, प्रिंसिपल वेन्स कितनी है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द वेनलेट्स, और उस मिडरब से जो ब्रांचेस निकलती हैं वेन्स एंड द वेनलेट्स व्हाट दे हैव द अरेंजमेंट. There are the two main types of the venation. One is called as the parallel venation and the other is called as the reticulate venation. First of all we will discuss about the parallel venation. In the parallel venation many veins which are about equal in the size run parallel to each other from the base to the apex of the leaf. As you can see in this diagram ke more than one veins in parallel venation, many veins that are about equal, they equal in the size, they run parallel to each other. ठीक है, ये run parallel कर रही हैं, each other run parallel to each other from the base to the apex. This type of the venation is called as the parallel venation. And the second case may be also is also considered as the parallel venation. लेकिन सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि मैनी वेन्स विच आर अबाउट इक्वल इन द साइज दे कैन आइदर रन फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द लीफ और फ्रॉम द मिडरब टू द मार्जिन्स ऑफ द लीफ. ठीक है, ये तो बेस से लेके एपेक्स की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पे क्या है कि वो मिडरब से जो है वो मैनी पैरेलल वेन्स ऑफ द इक्वल साइज आर अराइजिंग एंड दे रन पैरेलल फ्रॉम द मिडरब टू द margins of the leaf, as in this case.
This type of the venation is also called as the parallel venation. In this case the veins have either no branches, कि या तो ये veins वगैरह जो हैं इनकी branches नहीं होती, या अगर branches होती भी हैं these may have the branches and these may be rejoined with the one another but they form very inconspicuous network, कि यानी एक नेटवर्क सा जो है वो उनमें अगर हम कीनली देखें तो वो हमें नज़र आता है लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता. तो दिस टाइप ऑफ द विनेशन इज़ कॉल्ड एज द पैरेलल विनेशन. ये दोनों केस जो हैं ये इनको हम पैरेलल विनेशन का जो है वो नाम देते हैं. पैरेलल विनेशन इज़ यूजुअली इट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट. मोनोकॉट में जो है वो हमें पैरेलल विनेशन जो है वो मिलती है. जैसे उसमें हमारे पास जो है ग्रासेस वगैरह में हमें ग्रासेस के लीफ में आप देखें इस तरह की अरेंजमेंट होती है. सीरियल्स यानी हमारा वीट है, राइस है, इनमें जो है वो वीन्स इस तरह की जो है वो प्रेजेंट होती हैं. उसके अलावा बनाना लीव्स में भी जो है वो इस तरह से हमें पैरेलल विनेशन इस तरह की जो है वो नज़र आती है. तो ये दोनों केसेस जो है ये पैरेलल विनेशन के हैं. एंड द सेकंड केस इज़ अबाउट द रेटिकुलेट विनेशन. अब रेटिकुलेट विनेशन क्या है? इन द रेटिकुलेट विनेशन द स्मॉलर वेन्स आर राइज्ड फ्रॉम द मिडरब के एक मेन वेन होती है हमारे पास मिडरब और उससे बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो राइज करती हैं. फर्दर these give rise to the again branches and they again rejoin with the one another and they form a network. और वो एक कॉन्स्पिक्यूस नेटवर्क जो है वो बनाती हैं, यानी वो प्रोमिनेंट नेटवर्क जो है वो हमें लीफ में बना हुआ नज़र आता है. दिस टाइप ऑफ द विनेशन इज़ कॉल्ड एज द रेटिकुलेट विनेशन. रेटिकुलेट विनेशन जो है दिस इज़ द यूजुअली करैक्टरिस्टिक ऑफ द डायकॉट्स, यानी पैरेलल विनेशन मोनोकॉट्स में प्रेजेंट है और रेटिकुलेट जो है वो डायकॉट्स में प्रेजेंट है. अब ये जो टू टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी हैं विनेशन की, पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन. दीज बोथ ऑफ दीज टाइप्स may be either classified as the unicostate or the multicostate according to the number of the main veins. यानी चाहे पैरेलल विनेशन है चाहे रेटिकुलेट विनेशन है, इसमें फर्दर जो है हमारे पास टू केस जो हैं वो दोनों में हम टू केस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि पैरेलल विनेशन may have the unicostate or the multicostate and the reticulate venation may also be the unicostate or the multicostate according to the number of the main veins or the midrib. यानी मेन वेन जो है वो एक है या एक से ज़्यादा है. तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि पैरेलल विनेशन में जो है वो हमारे पास टू केस जो हैं वो क्या हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट. अब ये है हमारे पास इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है. दिस इज़ द केस ऑफ द पैरेलल विनेशन बट इट इज़ क्लासिफाइड एज द पैरेलल यूनिकॉस्टेट विनेशन. क्यों इसको हमने यूनिकॉस्टेट कहना है कि इसमें लीफ के पास जो है वो एक सिंगल जो है वो मेन वेन जो है वो प्रेजेंट है. मेन वेन या मिडरब प्रोमिनेंट वेन जो है वो सिंगल है. इट गिव्स ऑफ द लैटरल ब्रांचेस विच अगेन रन पैरेलल टू द ईच अदर. as we can see that they arise from the midrib and are running towards the margins of the leaves parallel to the each other as they are appearing just like the feathers. ठीक है, जिस तरह से जो है वो पिन्नी ऑफ द फीदर्स, जिस तरह से पर जो हैं वो बर्ड्स के जो है वो जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं उस तरह से जो है वो प्रेजेंट है. तो दिस टाइप ऑफ द विनेशन इज़ कॉल्ड एज द यूनिकॉस्टेट पैरेलल विनेशन. और इसको यूनिकॉस्टेट भी आप कह सकते हैं क्योंकि मेन वेन एक है और हम इसको एज इट रिजेंबल्स टू द पिन्नी सो दैट इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द पिन्नेट विनेशन. और इस तरह की विनेशन जो है हम उसमें देख सकते हैं बनाना के प्लांट में उसके लीव्स में. सेकंड केस है पैरेलल विनेशन का विच इज़ कॉल्ड एज द मल्टीकॉस्टेट, यानी पैरेलल भी है और वो मल्टीकॉस्टेट भी है. मल्टीकॉस्टेट में क्या होगा, द लीफ हैज़ अ नंबर ऑफ द प्रिंसिपल वेन्स. ठीक है, एक से ज़्यादा काफ़ी सारी जो है वो मेन वेन्स और द प्रिंसिपल वेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं विच आर इक्वल इन द साइज एंड विच रन मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द विनेशन इज़ कॉल्ड एज द मल्टीकॉस्टेट. मल्टीकॉस्टेट भी कह सकते हैं आप इसको और पॉमेट जो है वो भी कह सकते हैं. अब मल्टीकॉस्टेट में हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा वेन्स जो हैं वो प्रेजेंट है या मेन वेन जो है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट है. तो मल्टीकॉस्टेट के जो है ये एक से ज़्यादा जब वेन्स प्रेजेंट है तो उनका पैटर्न क्या है अरेंजमेंट का, उसकी बेस पे मल्टीकॉस्टेट को हम टू फर्दर सब टाइप्स में जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज द कन्वर्जेंट एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट. अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग, यानी हमारी विनेशन जो है वो मल्टीकॉस्टेट है लेकिन वो आइदर इट विल बी द कन्वर्जेंट और इट विल बी द डाइवर्जेंट. अब कन्वर्जेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा,
कन्वर्जेंट में हमारे पास मल्टी कॉस्ट स्टेट केस में कि द प्रिंसिपल वेन्स रन्स मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड दे विल कन्वर्ज टूवर्ड्स द एपेक्स। एपेक्स की तरफ जो है वो जाके कन्वर्ज जो है वो होती हैं। कन्वर्ज का मतलब कि वो इकट्ठी होती हैं, जैसे ये वाला केस है कि बेस से जो है वो निकल रही हैं और ऊपर जाके जो है वो एकदम से जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, तो इसको भी हम मल्टी कॉस्ट स्टेट कन्वर्जेंट जो है वो कह सकते हैं। या इसमें हमारे पास ये भी एक लीफ है, मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है, ये भी मल्टी कॉस्ट स्टेट है क्योंकि बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स हैं, लेकिन अगर देखें तो ये ऊपर टिप की तरफ जाके जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द मल्टी कॉस्ट स्टेट कन्वर्जेंट। ठीक है। दूसरा हमारा केस है मल्टी कॉस्ट स्टेट डाइवर्जेंट। मल्टी कॉस्ट स्टेट डाइवर्जेंट में हमारे पास है क्या होगा, द प्रिंसिपल वेन्स डाइवर्स टूवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, के प्रिंसिपल वेन जो हैं दीज डाइवर्स टूवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। कि ये देखें इस केस में जो है दिस इज़ द कैस्टर ऑयल प्लांट, कैस्टर ऑयल प्लांट का लीफ है कि ये बहुत सारी जो है वो मेन वेन्स जो हैं वो प्रेजेंट है और वो सारी की सारी जो है वो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ जा रही हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, वो फैल रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द मल्टी कॉस्ट स्टेट डाइवर्जेंट। और ये हमारे पास है मल्टी कॉस्ट स्टेट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो है ये हमें जीजीफस बेरी का जो दरख्त होता है उसके पत्ते में आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये मल्टी कॉस्ट स्टेट का केस जो है ये हम उसमें जो है वो फैन पाम्स के जो होते हैं अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हुए उनमें भी देख सकते हैं, और उसके अलावा कैस्टर ऑयल प्लांट में जो है ये हमारे पास जो है वो केस भी मिलता है। बाकी ये यहाँ पे जो है एक टिपिकल केस है, टिपिकल केस है यूनिकॉस्ट स्टेट जो है वो रेटिकुलेट विनेशन का। यूनिकॉस्ट स्टेट रेटिकुलेट विनेशन में क्या है कि हमारे पास मेन वेन एक है, उसके बाद जो है वो उसमें से जो है वो ब्रांचेज जो है वो निकल रही हैं, दे अगेन गिव राइज टू द ब्रांचेज, दे अगेन री ब्रांच एंड री यूनाइट एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग कैन बी सीन इन केस ऑफ द मैंगो में, या जो है वो पीपल में जो है फाइकस का जो ट्री है यानी उसमें जो है वो आप इसको जो है वो देख सकते हैं ईजिली। यूनिकॉस्ट स्टेट रेटिकुलेट, तो यूनिकॉस्ट स्टेट जो है वो रेटिकुलेट यानी सिंगल जो है वो इसमें मिडरब होगी एंड इट विल गिव राइज टू द लेटरल ब्रांचेस विच विल रन टूवर्ड्स द मार्जिन्स एंड दे गिव राइज टू द सेवरल ब्रांचेस, ठीक है, विच पास इन ऑल ऑफ द डायरेक्शंस एंड दे विल फॉर्म द कॉन्स्पिक्यूअस नेटवर्क। और उसके बाद जो है हमारे पास रेटिकुलेट विनेशन में मल्टी कॉस्ट स्टेट। मल्टी कॉस्ट स्टेट केस में क्या होगा, द लीफ हैज़ द more than one principal veins all about equal in the size and they arise from the one point at the base of the lamina, ठीक है। और उसमें फिर मल्टी कॉस्ट स्टेट में हमारे पास जो है इट विल बी आइदर कन्वर्जेंट और इट विल बी द डाइवर्जेंट। अगर तो जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जाके जो है वो होगी हमारे पास ये कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, ये रेटिकुलेट केस भी है और इसके साथ साथ जो है ये कन्वर्जेंट भी है, ये रेटिकुलेट भी है और ये डाइवर्जेंट भी है। बाकी हमारे पास जो है ये ऊपर जो मैंने पहले डिस्कस की है ये हमारे पास जो है वो यूनिकॉस्ट स्टेट है, ये हमारे पास जो है वो मल्टी कॉस्ट स्टेट है। ये मल्टी कॉस्ट स्टेट जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट का केस है और ये हमारे पास जो है वो यूनिकॉस्ट स्टेट में जो है ये यूनिकॉस्ट स्टेट में एक मेन वेन है। मल्टी कास्ट स्टेट में हमारे पास आइदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। तो एक्चुअली जो है हमने इसके बारे में पढ़ा है विनेशन के बारे में कि विनेशन जो है वो किस किस तरह की है, दो तरह की है, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, और उसके बाद पैरेलल में भी यूनिकॉस्ट स्टेट एंड द मल्टी कास्ट स्टेट, और मल्टी कास्ट स्टेट में फिर कन्वर्जेंट और द डाइवर्जेंट। इसी तरह से रेटिकुलेट में भी यूनिकॉस्ट स्टेट और द मल्टी कास्ट स्टेट, और फिर अगर मल्टी कास्ट स्टेट है तो फिर जो है वो रेटिकुलेट विनेशन में आइदर इट विल बी द कन्वर्जेंट और इट विल बी द डाइवर्जेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। आप लोग इसको जो है इसी तरह से डायग्राम के साथ ही जो है वो इसको तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।